Sanjay, come everybody. And the next day, yes, Sounds new. वही तो मैं बोला सबसे पहले यही सवाल इधर ओपन है, इधर साइड ओपन है. You need to open. You're the one who is going to. Dad, you're supposed to. You're supposed to open that. Where's my biographer? yes, I'm here. Say that, Dad. The other way. Even in mom Gobi. We are taking your photographs also. Anil. Ashish, the first copy to Dad. Of course. From the author. And please tell him to read it also. The whole book today, musical notes in this. All the secrets. He is the author of this book. He is the writer of this book. But I'm honored to be there. Sir. Unwrap it, Uncle Louis, unwrap it. Valentine. It's a camera. Paste. It's a side. Correct. You open it, sir? Show it. ये दे दो. Ashish. Thank you. सब लोग ओपन करो. यार दिखा के खड़े हो जाओ. Hey, Neelan Ray, Monique. Thank you. Great. Congratulations. One's coming from Bali. I am his agent. Yeah. Nurin, come. Nurin. The wrapper also is good, is not, you can reuse. You can Pata use. That's a recycle, reuse. Recycle. Yeah. And reduce. Reduce, recycle. What are you eating? What happened to your hair? Where is Are you? Jaden? You come here. Stand in front here. One smile. Smiling. Everybody, whatever is holding. Look. Thank you. Yes, Camera to Sir. दिखाया तो करना पड़ेगा. Come, Louis. Oh, God, I have to cut myself. Happy birthday to you. Cut. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Louis. Happy birthday to you. Now come up. Wow. The bag felt so nice. Wow. All right. Posing also. Great. Nice cake. Speech. My name is Banks. My name is Banks. Louis Banks. And read the book. And I am so happy for today. It's the most amazing day for me. It's my birthday and it's the release of my biography, so wonderfully written by
Mr. Ashish Khatter. Hey! Three cheers for Ashish. It's a double celebration. And to have all my friends over here as a triple celebration. Thank you very much. From the bottom of my heart. What's the plan tonight? One announcement which he hasn't made. This is part 1. The part 2 will be written 30 years later. We'll all be called again. There has been interesting incidents in this. So this is part 1. Part 2 will come later. Thank you. Wow. You did the honors. And the time is already fixed, 30 years. 30 years, yeah. God bless you. God bless his words. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा अभी केक पकड़े हैं हाँ हाँ I'll catch you. सर थोड़ा इधर घुमाइए Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah. Oi, take some pictures, guys. Monique is also here go Come. This is good. Neil, Neil, Andre, Thor, Tanya, Jedu, put the Pepsi bottle. Taking pictures. of all the things. You didn't try to switch to Siddharth? Instead of we got him instead of last time. सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी आपको। आपको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि आज के दिन आपने ये बुक लॉन्च का जो रखा है क्या कुछ फीलिंग है? Well, to begin with, it has become the happiest day of my life. It is my birthday and it's the release of my biography. And to have friends over, friends I love, it's like a double, not even a double, a triple celebration for me. So it's the happiest day of my life. Yes, most amazing. सो आज का ही दिन आपने क्यों चुना था ये जानना चाहूँगी। It's because it's my birthday. या Yeah, one of the reasons was it's my birthday and I had to tell my writer to try and get the book ready and he managed to do it. So it was amazing that the book was ready, printed and everything, and you have the copy up there and this was released today. It's the most amazing thing for me. सर सबसे पहले आपको बुक के बारे में जानना चाहूँगी कि कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा ये बुक लिखने में? Over 2 years, writing and researching, contacting all my friends, not the present friends, the past. In the past, he had to go to the past. When I was a child in school, he had to find friends, school friends of mine who were still living and talk with them and find out details about my life that even I didn't know, but it's in the book. So it was beautiful. सो आपकी लाइफ की जो जर्नी रही है अभी तक की उस बुक में पूरा देखने को मिलेगा। Pura and more. सो इस बुक में क्या कुछ ऐसा है जो आप स्पेशल बताना चाहेंगे कि ये जानना जरूरी है लोगों को? Well, about my journey, really. And like the title says, A Symphony of Love, it's always been like that, my love of music, which started when I was a kid. Yeah. I started playing music professionally from the age of 13. So from that age, I started playing music professionally and developed myself, I was taught music by my father, and then I learnt myself from books and listening to great musicians and developed myself, and I've come to this stage. And I have to thank my fans and friends who've appreciated what I've played and written, my compositions and all that. So I'm very grateful to them. Yeah. शंकर महादेवन सर भी आज इस मौके पे आए हैं तो क्या कुछ फील हुआ आपको? My favorite singer.
Shankar Mahadevan has. I know him before he became Shankar Mahadevan. I used to call yeah, he used to come. I used to call him to sing advertising jingles. I used to call Shankar. And one fine day, I had written a jingle for Cadbury Dairy Milk. Cadbury. वो खास है. And I asked Shankar to sing it. And he sang it so beautifully that year, that jingle was declared the best jingle of the year, and the best singer award went to Shankar. And after that, even Shankar's career went up and up and up because he's such a talent. I mean, incredible talent. And he's worked with me so much. He's toured the world with me, playing my music. Yeah, it has become a very integral part of my life. Absolutely. So I love the guy. Absolutely. ओके सो क्या कुछ अभी तक कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इस बुक को लेकर? They haven't read it yet. Let them read it. अभी कवर ये सब को लेकर क्या कुछ अभी कॉम्प्लीमेंट्स They love मिले? it. कितने लोग एक्साइटेड हैं इस बुक They're को पढ़ने so के लिए? excited and they're very eager to see what's written in the book. Yeah, they're very eager to do that, but they love the cover and the whole presentation today. They just loved everything. I'm so happy, really. थैंक यू सो मच. Thank you. Lovely talking to you. थैंक यू. सेम टू. तो सर सबसे पहले आज इस बुक के लॉन्च पे आए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसी फीलिंग है? फीलिंग तो बहुत अच्छी है। मैं लुई जी को 35 साल से जानता हूँ। जब मैंने मेरा पहला प्ले लिखा था बॉटम्स अप, जो म्यूज़िकल था, उस समय उनसे मिला था मैं। और उसके बाद में जितने भी मैंने प्लेज लिखे, 25-26 प्लेज में सिर्फ लुई का म्यूज़िक था। और मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारा जो भी प्ले सक्सेसफुल हुआ, उसमें लायंस शेयर लुई का था। लुई की एक खासियत ये है कि वो जो भी करते हैं एफर्टलेसली करते हैं, हंसते हंसते करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, वो बहुत मतलब उनका ईगो रहता है, उनके प्रॉब्लम रहते हैं। लुई का ऐसा कुछ नहीं है। उसके आप सामने बैठो, बोलो हमको ये करना है, तो ब्रॉडवे स्टाइल का टाइटल सॉन्ग हो या कोई टेक ऑफ हो, जैसे हमने मराठी की लावनी की है इंग्लिश में, वो लुई ने म्यूज़िक दिया था। हमने बंगाली रविंद्र संगीत किया इंग्लिश में। तो एफर्टलेसली लुई ये करते जाते हैं। और सबसे मेरे ख्याल से दिलचस्प बात यह है कि वो कभी टेंस नहीं होते। आप बोलो कि अच्छा लगा नहीं और कुछ नया ट्राई करते हैं, अगले दिन आएंगे तो कुछ नया लेके आएंगे। तो ये बहुत कम लोगों में ऐसे होता है। तो आज इनकी जो बुक की भी रिलीज़ है, उनका बर्थडे भी है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अभी जैसा कहा कि आई होप कि ये पहली एडिशन है, पहला मतलब पॉइंट है ये अपना बुक नंबर 1 है। इसका 30-40 साल के बाद और एक दूसरा बुक आएगा, एंड ही हैव इंटरेस्टिंग थिंग टू से इन दैट। तो लुई के लिए ऑल द वेरी बेस्ट विशेस, ग्रेट म्यूजिकल लाइफ अहेड। आपकी और उनकी बॉन्डिंग कैसी है? हमारी बॉन्डिंग, जब मैं पहले दिन मिला था उनसे, मैं जानता नहीं था। मैंने कहा कि हमारा ये प्ले करने जा रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम इंग्लिश में प्ले था, उसमें हिंदी, मराठी, गुजराती सब था उसमें। तो मैंने कहा आप कर सकेंगे, आप तो जैज़ म्यूजिशियन हैं। तो जैसे मैंने शुरू किया लुई को बोलने के लिए कि हमारे भी क्या है उसमें, क्या क्या स्किट्स हैं, कैसे गाने हैं, तो ही केप्ट ऑन सेइंग उफ उफ, दैट्स सो गुड। एंड वो उफ जो था इतना एडिक्टिव था। अब मैं 35 साल से उनको जानता हूँ, अभी भी कुछ बात करते हैं उनको पसंद आई तो उफ दैट्स फैंटास्टिक, माय गॉड दैट इज़ सो फनी। तो ये जो उनकी एक मतलब इट्स लाइक अ चाइल्डिश हैबिट, ये बहुत अच्छी उनकी मतलब दिलचस्प बात है। बहुत सारे लोग ना क्या होता है कि बचपना खो बैठते हैं। व्हेन दे बिकम फेमस, व्हेन दे बिकम पॉपुलर, दे बिकम स्टार्स। तो लुई इज़ फेमस, पॉपुलर सब हैं, बट स्टिल अ चाइल्ड, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ लुई। आप एडवर्टीजमेंट के फील्ड से बिलोंग करते हैं, सो पहले के एडवर्टीजमेंट और अब के एडवर्टीजमेंट में क्या कुछ डिफरेंस नज़र आता है या फिर क्या कुछ परिवर्तन हुआ? पहले के एडवर्टीजमेंट्स अच्छे थे, आजकल के उतने अच्छे हैं नहीं। लेकिन उसका कारण ये नहीं कि आजकल क्रिएटिव लोग हैं नहीं। जब हम करते थे पहले ज़माने में, तो हमारा ये था कि क्लाइंट जो हमारे थे वो हमें पूरा फ्री हैंड देते थे कि आप
आप पे कॉन्फिडेंस है, आप जो भी करते हैं हमारे लिए करो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आजकल ये हो गया है कि क्लाइंट के इतने लेयर्स हो गए हैं, तो एक क्रिएटिव आइडिया जब कोई सामने आती है तो उसमें 10 लोग अपना अपना कोई विचार डालते जाते हैं, तो उसमें वो आइडिया की प्योरिटी, आइडिया की ब्यूटी रहती नहीं है। तो मेरे ख्याल से एडवर्टाइजिंग इतना अच्छा न होने का कारण क्रिएटिव लोग नहीं हैं, क्लाइंट्स और बाकी सब मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस जो होता है उसकी वजह से वो उतनी अच्छी रहती नहीं जितनी पहले किसी ने प्लान की थी। तो अगर क्लाइंट अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन वालों पे फेथ रखे, उनको एडवाइज़र के तरीके से यूज़ करें, नॉट सप्लायर्स, तो मेरे ख्याल से एडवर्टाइजिंग फिर से अच्छी हो जाएगी। ओके, अगर एडवर्टाइजिंग के फ्यूचर के बारे में बात करूँ तो आप 10 साल 20 साल बाद क्या मानते हैं कि किस टाइप का इसका होगा? एडवर्टाइजिंग में कुछ फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क ये होगा कि नए नए आजकल मीडिया सामने आ रहे हैं। जैसे हमने जब शुरू किया तब टीवी भी नहीं था, सिर्फ प्रेस था, सिर्फ होर्डिंग्स थे, फिल्म्स थी, जो फिल्म थिएटर में हम लोग दिखाते थे एडवर्टाइजिंग। फिर टेलीविज़न आ गया, फिर टेलीविज़न की ऐड छोटी बनने लगी। पहले हमारी 1 मिनट की ऐड होती थी, फिर 30 सेकंड की हो गई, 20 सेकंड की हो गई। अभी सोशल मीडिया आ गया तो फिर से ऐड बड़ी हो गई। अभी आप फेसबुक पे डालो 3 मिनट की ऐड हो सकती है। तो मेरे ख्याल से मीडिया की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसमें बदलाव आता जाता है। एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट हैज़ ऑलवेज बीन द सेम कि आपको आपका क्लाइंट का प्रोडक्ट सबसे अच्छा कैसा है ये दिखा के बेचना है, ये कभी चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपकी ड्यूरेशन बढ़ेगी। और एक मुझे ये अच्छा लगता नहीं है कि आजकल एक टेंडेंसी हो गई है कि आप सिर्फ फिल्म स्टार्स को यूज़ करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि फिल्म स्टार्स की रीच रहती है, मतलब भारत भर में लोग उनको पहचानते हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी रहती नहीं है। तो कोई अच्छे लोग लेके जो अपनी कैंपेन को शूट करते हैं, वो अगर लेके आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा रहती है। सिर्फ आप कोई बड़े सुपरस्टार को लेके ऐड करें तो लोगों को सुपरस्टार्स याद रहते हैं, आपका प्रोडक्ट याद नहीं रहता। तो ये मतलब दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच सर, लवली टू टॉकिंग। I love you always. Sir. Where's my wife? She's okay there with the ladies. Wow. Sir. Runa! Taji! I don't know. She's with the ladies. वो तो बता ना। Andre, just call Lore. एक मिनट। Yeah, no. Come in the middle. I'll come in the middle. Oh, you're covering this. I don't want to cover the photo. No, that's fine. The book is there. Yeah. Book is there. Okay. Book is there. Yeah. Look, Where's Senda. Milana? All of you send Hey, Milana! Yeah, look here. This is corner. Senda, all of you. Thank you. Hey महाराष्ट्र, मैं बहुत प्यार करता हूँ महाराष्ट्र का। आप लुई बैंक्स को प्यार करता है? यस जी, मेरा गुरु। ओके, नमस्कार। नमस्कार। It was a great day today. My friend, my guru, my master, my teacher, Mr. Louis Banks, who was given a beautiful life to me, and I don't know, no words. And his birthday today, and he launched his autobiography of his book. Wow, Louis, congratulations, all the best. Thank you. And I just came to surprise you actually from all the way from Chennai. Say happy birthday. Happy birthday. Say Sarigama Padanisa. Sarigama Padanisa. Wow. नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल है बिकॉज द फादर ऑफ जैज़ ऑफ इंडिया में जिनके नाम से जैज़ का नाम अगर कोई ले तो वो एक ही वाहिद शख्स हैं, वो है लुई बैंक्स सर। आज उनका जन्मदिन है और ये खूबसूरत बुक जो उन्होंने लिखी है अपनी जीवनी पर, उसका लॉन्च भी है। और हम सब बहुत खुशनसीब महसूस करते हैं अपने आप को कि आज इस मौके पर हम लोग आ सकें, शरीक हो सकें। और हमारी बहुत बहुत दुआएं और बहुत बहुत गुड विशेस उनकी हेल्थ के लिए, और इसी तरीके से वो अपना डिवाइन म्यूज़िक पूरी दुनिया भर में फैलाते रहें, क्योंकि ऐसे शख्सियत, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी ये सिर्फ़ एक अच्छे अजीम फ़नकार ही नहीं है,
ये एक बहुत ही द मोस्ट अमेजिंग जेंटलमैन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ. एंड इनके पास जो भी आता है, whoever comes, जैसे हमारे कहते हैं whoever comes to the Banks family, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है. तो not only him, his entire family have so much to offer, not only love, music, but humanity, compassion, so much. So we congratulate the entire Banks family, and we love you guys, and yes, check out this book, it's amazing. by आशीष धातक जी. प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि एक कलाकार की जो जीवन की कहानी है वो बहुत ही एक डूबी हुई कहानी होती है, उसमें बहुत गहराई होती है. तो उसको इसे पढ़िए, इसमें बहुत सारी म्यूजिकल एक्सपीरियंसेस होंगे. आई एम श्योर यू ऑल आर गोइंग टू रियली एंजॉय. थैंक यू Yes. सो मच. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you.